our esteemed guests for this afternoon. From my left, we have got Country Director, SAF Australia, Said Atif Fahim. To his left, we have got the one and only living legend, Sir Jahangir Khan. Next to him, we have got the great Lala. He is also, he doesn't need any introduction. The global chairman of Shahid Afridi Foundation. And next to Lala, we have got Zafar Malik. He is the global CEO of Shahid Afridi Foundation. Thank you very much for all of you to be here. Now, we all have been in that 14-hour flight, right? This is a very selected and honored group and privileged group of people who have been meeting our esteemed guests within just 24 hours, which I landed last night. So I hope you would go easy with your questions and there won't be any curveballs. Having said that, just a few things on the housekeeping. We have a hard close at 3:30 because we have a flight to catch for Melbourne this afternoon, inshallah, for our Melbourne event. So I would prefer and I would request you to have your questions really concise, relevant, and to the point as well. Also, given the audience and everyone is keen to have a few questions, so I would request everyone to raise their hand for one question, and I would move to the next person who hasn't raised a question or asked anything yet. Yeah, and please, before raising a question, if you can have a couple of words about yourself as well, that would be good. Just a bit of context about the press as well. As you are all aware that today marks, actually we are going to mark 5 years of SAF Australia chapter as well, alhamdulillah, and it has been going great. And the timing of the tour is really amazing as well. We have got Lala, we have got Sir Jahangir Khan as well, endorsing the cause over here and being ambassador of all these projects as well. You can see we have got few projects which are going and thriving. We have got water, education, health, food, and then flood relief, which is coming under the emergency relief as well. The purpose of this tour is to get Lala and Jahangir Khan meet with all those supporters and donors who have been supporting the cause for over the past 5 years, but also visit Australia and let people tell the story about how the teams are working over there, how the donations from local supporters, local donors, is getting channelized to the people who are really in need. So it would be good if you can have few questions around that, and Lala and Sir Jahangir Khan and also Zafar Malik, they would be more than happy to answer your questions. Before opening the floor, may I ask Lala and Jahangir Khan to give a bit of welcome speech, opening statement, and then I'll open the questions for everyone. Thank you. Let them ask the question. मेरा सवाल दोनों से असल में है, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा, ख़ास तौर पर जहांगीर खान मेरा आइडियल था। मैं थोड़ी बहुत स्क्वाश मैंने भी खेली थी जवानी के दौर में, तो मैं उस वक्त जब हम इनको देखते थे तो हम समझते थे कि पाकिस्तान जो है ना, ये कभी भी डोमिनेट किया हुआ था हमने दुनिया पूरी पर, और ख़ास तौर पर आपकी फैमिली की वजह से, आपके वालिद साहब का स्टार्ट हुआ, फिर आपने, और उसके बाद जान शेख साहब ने इसको कंटिन्यू। लेकिन वो दौर कहाँ चला गया, और अभी हम इस हालत में कि हम किसी जगह पर नज़र नहीं आते। तो स्क्वाश में हमारी जो ये हालत हुई है, इसके हवाले से थोड़ा सा आप जवाब चाहूँगा। मैं दूसरा सवाल शामिल कर लूँ आपके लिए, या बाद में अलग से पूछूँ? जहांगीर भाई पहले कर लें, फिर इसके बाद। यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से तो नहीं बैठा हूँ इस वक्त, मुझे ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, स्क्वाश का सवाल की 2-3 की वजूहत है, जिसमें एक तो जितना स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान ने नाम कमाया, जितनी टाइटल ला के दिए, उसकी बदौलत जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, जितना उसके बारे में काम होना चाहिए, वो कभी नहीं हुआ। और यही वजह है कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 96-97 के बाद हम उस लेवल पे नहीं रहे, क्योंकि जो भी चैंपियन उस ज़माने के आए हैं, वो सारे अपनी मदद आप खुद आए थे, उनकी अपनी मेहनत थी, अपनी एक अपना विजन था, मगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एकेडमी के ज़रिए नहीं आई थी। और ये आप दूसरे ममालिक को देखें तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, दूसरे ममालिक में उनकी जो फैसिलिटीज है वो कई दर्जा बेहतर होती है, और उस वक्त भी बेहतर थी। तो अब आजकल के दौर में ये चीज़ें आपको ग्रूम करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस मोटिवेशन के लिए उन लोगों की ज़रूरत होती है जो इसके एक्सपर्टीज रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ अभी तक कोई नहीं, तो जिस वजह से नाम बोला, क्योंकि जो लोग चला रहे हैं
वो चीज़ को समझते नहीं जो लाई जाती है। That's all. थैंक यू। लाला यहाँ मौजूद हो और उनसे बड़ी मोहब्बत है हम सबको, हम जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा, जैसे जहांगीर खान साहब ने कहा कि हम अपने जिस मिशन के लिए आप यहाँ निकले हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह सैयद आतिफ फ़हीम जो है ना, उन्होंने दिन रात एक पूरी फैमिली ने, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो फाउंडेशन है इस वक्त पाकिस्तान में जो कर रही है, थोड़ा सा मुख्तरन हमें बताएं, क्योंकि माशाल्लाह हमें पता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मज़ीद आप बताएंगे तो हमें ज़रा बहुत अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। पहले तो उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का ऑनेस्टली दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग सारे अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आप लोग यहाँ पे आए, और ये भी आप लोगों की तरफ से चैरिटी है जी, जो आप लोग आए हैं और आज के हमारे इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जहाँ तक फाउंडेशन का ताल्लुक है, देखिए जी, इस मुल्क ने मुझे वो कुछ दिया जो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास यही मुल्क है। जब एक मुल्क ने जब इतनी इज्जत शोहरत सब कुछ दिया, तो फिर मैं समझता हूँ कि इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा फेम के साथ ऊपर वाले की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती है। और मेरा एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जो कि सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो आई मीन उसमें 65% तो हमारी यूथ है। तो 65% यूथ कर क्या रही है? 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आपके स्कूल से बाहर है। तो आई मीन कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर बनती हैं। मैंने ये इनिशिएटिव अपना फाउंडेशन का शुरू किया था एक हॉस्पिटल से। मेरे वाले साहब का जब इंतकाल हो गया था, तो मैंने उनके नाम से कोई फाउंडेशन रजिस्टर नहीं की थी, मैं खुद ही चला रहा था उस हॉस्पिटल को। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से हूँ कि जहाँ की प्रॉब्लम्स मुझे अच्छी तरह पता है। हम समझते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बस यही शहर है, नहीं, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। हमारे मुल्क में बहुत सारी एनजीओज बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उन जगहों पे नहीं जाती जहां पे जाना चाहिए। जैसे कि बलूचिस्तान का एरिया हो गया, केपीके का एरिया हो गया, वहां पे एनजीओज नहीं जाती, काम नहीं करती। प्रॉब्लम है, एक्सेस है, लॉजिस्टिक है, एंड देन फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन जगहों पे पहुंच जाता हूं। मुझे वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स का पता है कि वहां पे 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर छोटे बच्चे पैदल जाते हैं एक मटका पानी के लिए, सिर्फ एक मटके पानी के लिए। तो आई मीन के एक प्रेग्नेंट औरत है, 3 घंटे की ड्राइव करती है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, प्राइमरी फैसिलिटीज के लिए। वहां पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आप जैसे लोग सारे मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं, इसको मैं अपनी सेकंड इनिंग कहता हूँ। पहली इनिंग में तो आउट हो जाता था, लेकिन इस सेकंड इनिंग में इंशाल्लाह आप जैसे लोग, बड़े लोग मेरे साथ, आप लोगों की दुआएं शामिल होगी, तो इंशाल्लाह इस काम को आगे तक लेके चलता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको खुशामदीद करती हूँ सिडनी में। जो आपने बातें कही हैं उसमें से 2-3 जल्दी से मैं उसी में से बात निकाल लूँ। जब मैं देख रही हूँ, अच्छा, मेरा ताल्लुक शफक जाफरी, मैं शफक जाफरी, मैं CEO हूँ पहचान टीवी की है, और मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन की। तो फ्लड रिलीफ, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इसमें से कोई एक चीज़ पिक करना हो तो शफक जाफरी किसको पिक करे? पहले आपसे सवाल ये करूँगी। जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी वो ये, जिसको मैं चाहूँगी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें। और क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, बगैर किसी लड़की की तालीम के तसव्वुर करना मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। और अब हमें ये सोचना होगा कि एक पढ़ी लिखी माँ अगर हम दे देंगे तो पूरी कौम सुधर जाएगी। तो स्पेशली खवातीन ये क्या कर रहे हैं, लड़कियों के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम, मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, लास्ट टाइम जो आतिफ फ़हीम भाई ने अनाउंस किया था लड़कियों के एजुकेशन को, उनको याद होगा, हमने 5 बच्चियाँ उसी वक्त मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली थी कि इनकी तालीम की जिम्मेदारी हम लेंगे। इस तरह के इनिशिएटिव आप सामने लेकर आएँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। फिर दूसरा ये कि कब तक भला ये गैर की कुव्वत पे इन्हिसार, वो कौम है अजीम जो कि सेल्फ मेड है, कुछ और ही है मुल्क के अमराज का इलाज, ये डॉलरों की एड फ़कत फर्स्ट एड है। कब तक हम डॉलरों की एड लेते रहेंगे? हम भी जो है आपको एड ही दे रहे हैं ना, इमदाद दे रहे हैं। सोल्यूशन ऐसा निकालें कि अपने कदमों पे कौम खड़ी हो जाए। मैं जब से बड़ी हुई हूँ, बचपन से लेकर अब तक मैं इमदाद पर ही मुल्क को चलता हुआ देख रही हूँ। आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप स्टार्स हैं, स्टार नाइट बना रहे हैं। आपकी शाइनिंग से अब हम फैज़याब हों, और हमें सोल्यूशन कोई चाहिए पक्का। बलूचिस्तान की आपने बात करी, नहीं करना मुझे सियासी गुफ्तगू पर,
मैं आंखें बंद कर रही हूँ मुल्क की तरफ, सियासत पे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन आ जाएगा सर। सो मसला ये है कि जो बलूचिस्तान की हालत है आपको भी पता है, कोई और सोल्यूशन सोच लें। हम सब चाहे जितने भी ये पसमानदा इलाके हैं, किस तरह की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। जब हम इन मुल्कों में आते हैं हमें एहसास होता है कि हम किस तरह तड़पता हुआ बिलखता हुआ छोड़ के आ रहे हैं, हम रोने लगते हैं। हम बड़े हसास हैं, हम परदेश में बैठने वाले ना बड़े हसास हैं। तो सोल्यूशन कोई मुझे चाहिए पक्का वाला आपसे। और दूसरा सर जहांगीर साहब, आप स्टार हैं, हमारे अपनों बड़ों ने भी आपकी तारीफें कर करके गुजारा और हमें भी कहा गया है तारीफ करनी है। तारीफ को अल्लाह को भी पसंद है, तो मैं भी जैसे सर ने तारीफ करी मैं भी आपकी बहुत तारीफ करूंगी। लेकिन तारीफ उस वक्त मुकम्मल होगी जब आपने अपने जैसे डुप्लीकेट बना दिए होंगे और मेरे मुल्क में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने के लिए आप जैसे और स्टार आएंगे। सर आपके डुप्लीकेट चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने जो सवाल किए हैं उसी सवालों में आपने जवाब भी खुद ही दे दिया। ये अच्छा कि मेरे लिए ये कर दिया। देखें, क्योंकि मेरी अपनी 5 बेटी हैं, तो मेरा बिलीव इसी चीज पे है कि बेटी पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। हम ये समझते हैं कि मर्द माशरा चलाता है, ऐसा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से माशरा चला है, हजरत फातिमा से। तो क्योंकि मेरी भी बेटियां, तो मैं हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें 51% जो है वो बच्चियां हैं और 49% बच्चे हैं। अच्छा, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन अल्लाह ताला ने इल्म से दुनिया को रोशन किया हुआ है, तो एजुकेशन तो है ही इम्पोर्टेंट चीज। एजुकेशन के साथ साथ हम जो ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हमने शुरू किए हैं कि जब बच्चा मैट्रिक करे, ठीक है, 90+ % के बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे देते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे वो क्या मैट्रिक के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने उनके लिए क्या किया, हमने ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिए उस स्कूल के अंदर। तो बच्चे जो है वो कोई ना कोई जब मैट्रिक करके जाए तो एक ना एक उसकी जिंदगी में कोई स्किल हो जिससे वो जिंदगी में सफर कर सके, चल सके। तो ये हमारे एक इनिशिएटिव है। बाकी हम बहुत ज्यादा राशन का भी कर रहे थे काम, लेकिन उसका कोई हल, जिस तरह आपने कहा कि कोई हल नहीं है, हमने क्या किया है कि जो बच्चा 90% अटेंडेंस जिस बच्चे की होगी उसको हम 1 महीने का आटा देंगे। तो होता क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को स्कूल जाने देते हैं। ये नहीं होता कि बच्चों को निकाल ले कि बच्चों को आप क्यों पढ़ाने के लिए भिजवा दें। वो पूरे दिन में 500 रुपए कमा लेता है, 1000 रुपए कमा के घर को कुछ तो ले आता है। हम चाहते हैं कि वो जो राशन है वो उनको घर को जाए ताकि माँ अपने बच्चों को स्कूल भिजवाए। सस्टेनेबल चीज की बात की, सस्टेनेबल देखिए जिस तरह अभी जफर जो है वो आपको अभी बताएंगे, तुर्बत गए थे बलूचिस्तान का, एक पता है बलूचिस्तान कैसा एरिया है, तो तुर्बत तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, क्योंकि वहां पे क्वेटा से दूसरे शहर का जो एक्सेस है वो बहुत इजी है। तो तुर्बत कितने ड्राइव है, 9 घंटे की ड्राइव है क्वेटा से तुर्बत, और वहां पे कुछ नहीं है। तो वहां पे इंशाल्लाह हमारा एक मोबाइल हेल्थ यूनिट जो मदर एंड चाइल्ड का है वो भी वहां पे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट में इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएगा। वहां पे बच्चों की एजुकेशन के लिए वो भी ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन तैयारी हो गई। लास्ट विजिट पे सब देखूंगा मैं नेक्स्ट विजिट। तो हमारी बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को नजर आएगी। और जो खास तौर पे मैं ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है या जो लोकल्स है, उनका ऑनेस्टली दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि आप लोग हमेशा फिक्रमंद रहते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी सपोर्ट हमें मिलेगी, चाहे वो डोनेशन हो चाहे आप लोगों की दुआएं हो, इंशाल्लाह मैं तो काम करता रहूंगा वहां पे। मैं ये नहीं देख रहा कि मेरा वजीर आजम कौन आ रहा है, मैं ये देखूंगा कि शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान क्या काम कर रहे हैं वहां पे। ये बहुत देखिए हमारे मुल्क में माशाल्लाह, ये कहता मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये कि हमारे मुल्क में NGO जिस तरह काम कर रही है और ये छोटे छोटे पैमाने पे सब जगह अपनी हिस्सा डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और होती भी आ रही है। अगर ये NGOs काम ना कर रही होती, आप सोच लें कि जो मुल्क वेलफेयर स्टेट होते उधर भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पाकिस्तान में वेलफेयर स्टेट का कोई नाम ही नहीं है। अगर NGOs काम ना कर रही होती तो ये जो आपके मसले आपने अभी सुने हैं ये कहाँ से हल हो रहे थे। ये ऐसी है जो हम जैसे फाउंडेशन है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, ये कतरा कतरा करके एक पूरा दरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ये हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। अगर आज मैं शायद अगर हम सारी टीम मिलकर काम करती है तो इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ हमें एक अच्छा पैगाम देने के लिए होती है, कोशिश हो रहा है। आप जैसे लोग जितना सपोर्ट करते हैं इसी तरह हम लोगों की भी हिम्मत बनती है कि हम आगे इसमें बढ़ें।
दूसरी बात, जहाँ तक आपने एकेडमी की बात की या इसकी कॉस्ट की, ये देखें हमारा काम जो था अपने ज़माने में जो हमने करना था वो अपना बुनियाद या जो जिस लेवल पे ले जाना था हमने पहुँचाया उसको, मगर जब उसको मजीद बेहतर या कैश करने की ज़रूरत होती है या सर्विसेज मजीद लेने की ज़रूरत होती है तो आपको स्कूल एकेडमी इस तरह की चीज़ें बना के देनी होती है ताकि उस तरह की फैसिलिटेट करें तो आपके पास जो हीरोज बैठे हुए हैं या जो लेजेंड बैठे हैं उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें। आपके पास अगर डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल ना हो तो इलाज कहाँ से हो सकता है? तो ये सबसे बड़ा मसला है। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हुई है, मैं अभी भी अपनी तौर पर खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एकेडमी खुद बनाऊँ, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी फंडिंग बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई गली कूचे वाला गेम है। देखिए क्रिकेट है, हॉकी है, ये गली कूचे में खेल लेते हैं, किस तरह भी खेल लेते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ उसके लिए भी एकेडमी की ज़रूरत होती है। तो स्क्वाड तो टोटली पैरालाइज है इन चीज़ों से। तो जब तक आपके पास ये पूरा सेटअप नहीं होगा आपके पास प्लेयर नहीं आ सकता। मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये अपनी मैं एकेडमी बना रहा हूँ ताकि अपने खुद तौर पे बच्चों को मोटिवेट करें। हम साथ हैं सर, आपको बनाइए। थैंक यू वेरी मच। अगेन आई रीइटरेट कि अगर हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा कंसाइज रखें जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीवन गेट्स अ चांस, वी हैव अ हार्ड क्लोज एट 3:30 बिकॉज वी हैव अ फ्लाइट टू कैच। थैंक यू। वैसे सर आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मैं बोल रहा अच्छा, आप बोल रहे हैं, आपने पहली माइक लेके इसलिए मैंने कब्जे में ले लिया ना। सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद वेलकम कहते हैं सिडनी में। हम वतन मीडिया न्यूज़ ग्रुप की तरफ से मेरा राजा मोहम्मद असलम। मेरा क्वेश्चन भी शफक साहबा की रिलेटेड है कि माशाल्लाह यहाँ पे इतने लोग आते हैं, यानी कोई मजहबी तंजीमें वाले आ जाते हैं फंड रेजिंग के लिए, खिलाड़ी आ जाते हैं और बेशुमार इस तरह के यानी फंड रेजिंग होती है और मिलियन डॉलर्स जो है हम वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उसका आउटपुट क्या है कि जी हम उनको उन पैसों को यूटिलाइज क्या कर रहे हैं कि आटा देने में यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों नहीं अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाते, फैक्ट्रियाँ लगाएं, कारखाने लगाएं जहाँ पे लोग खुद काम करें और वहाँ से पैसा आप जनरेट करें और उनके अंदर तकसीम हो ताकि उस कौम की भी हालत बदले, उस कौम के नौजवान को रोजगार मिले। और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप कुआं लगा देंगे, एक पानी का जो है नलका लगा देंगे, ठीक है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं उसको कंडेम नहीं करता, वो उससे अच्छी चीज़ है कोई नहीं। लेकिन असल चीज़ जो है कि वो खुद नलका लगाएं, खुद कुआं लगवाएं, खुद क्यों नहीं वो काम आप क्यों नहीं आप ऐसा जो है वो अपना काम करते कि जिससे अपना खुद इटसेल्फ फंड जो है वो आप उसको रेज करें और वो लोगों के ऊपर खर्च करें। और मुझे खुशी है कि 2 लीजेंड बैठे हुए हैं। और दूसरी आपने सियासी एक बात की, मुझे करनी नहीं थी लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा कर देता हूँ। आपने कहा मेरा चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आप थोड़ा सा किसी जमाने में आपने ऐसे बयान दिए थे कि जो चोर और डाकू थे वो उनको थोड़ा सा आपने सपोर्ट करने की कोशिश की थी। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा ऐसा ना कीजिएगा। थैंक यू। ये प्रोग्राम बिल्कुल गैर सियासी है, इसलिए हम इसको मैंने पहले वादा करके मैंने नहीं कर जी पहले सवाल का जवाब लेना। देखिए जो आपने पहली बात की वो बहुत ज़बरदस्त बात की है। मेरे लिए ना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के पास जाना, डोनेशंस मांगना। ये जानते हैं कि मैं बड़े भारी दिल से जाता हूँ लोगों के पास और डोनेशन मांगने के लिए। देखें मेरी एक नीयत, जब ये फाउंडेशन मैंने शुरू की तो मेरी एक अल्लाह से नीयत थी कि शायद अफरीदी रहे या ना रहे, ये फाउंडेशन रहनी चाहिए। तो उसके लिए फाउंडेशन को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा हमें। उसके लिए मुझसे जो होता है उसमें मैं अपने मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स को लेके आता हूँ, चाहे वो मेरा H&O का ब्रांड है, चाहे शायद अफरीदी स्टोर का ब्रांड है। इसकी जितनी भी इनकम आती है सब वो फाउंडेशन को जाती है, मैं अपने पास नहीं रखता। तो क्योंकि मैंने इस फाउंडेशन सस्टेनेबल बनाना है इंशाल्लाह, इस तरह का प्लान है। बाकी जो आपने सियासी बातें की हैं, मेरे ख्याल में इसका माहौल है भी नहीं। माहौल मेरा ख्याल में मैंने मुल्क में उस हर बंदे को सपोर्ट की है जो भी जिसने अच्छा काम किया है, चाहे वो कोई भी हो। मेरा काम है कि एटलीस्ट एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसके अच्छे काम की तो तारीफ हमें करनी चाहिए ना। अब जो बंदा काम नहीं कर रहा उसकी तो हम झूठी तारीफ तो मैं और आप नहीं कर सकते ना। जो भी बंदा हो इस मुल्क के अंदर हमें एटलीस्ट उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि यार एटलीस्ट आपने ये अच्छा काम किया है। अच्छा बोले, नहीं किया तो आप बोलते कि अच्छा काम नहीं किया। तो सियासत क्या है? सियासत तो खिदमत का नाम है। मेरा तो यकीन खिदमत पे है कि सियासत का मतलब है ही हकदार को उसका हक दिलाना। इस चीज पे मेरा बड़ा जबरदस्त बिलीव है। थैंक यू। Assalamualaikum. I'm Reza from 5 News.
Being an international student, I want to tell you that like from last 4 years, like last year, 4,50,000 स्टूडेंट्स अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में आए और ब्रेन ड्रेन का एक सिलसिला बहुत अरसे से जारी है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फाउंडेशन लोअर लेवल पे, स्कूल लेवल पे काम करना चाह रही है, लेकिन बड़े लेवल पे जो माफियाज बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, 15-15 लाख की डिग्री, 20-20 लाख की डिग्री, कोई हमारे पास ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमें आईटी की तरफ लेके जा सके। जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है आईटी में और हर हवाले से वो ग्रो कर रहा है। इंडिया को लोग लोन देते हैं फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। इधर जितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो लोन पर आते हैं, उनको यहाँ फीस नहीं देनी पड़ती है, दे कैन रीपे द लोन इन नेक्स्ट 6 years आफ्टर हैविंग अ जॉब इन द इंडस्ट्री। हमारे लिए हमें सब फीस भी खुद देनी है, सारा कुछ खुद करना है। आपने केपीके की बात की, पिछले कुछ 1 साल से केपीके के स्टूडेंट्स को वीजा ही नहीं मिल रहा, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट और व्हाटसोएवर वाज द केस। तो इस पे शाहिद आफरीदी ऑर्गेनाइजेशन एंड इटसेल्फ शाहिद आफरीदी फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ये देखिए हमारी फाउंडेशन, बल्कि मैं हम सबकी कहूँगा, हम सबकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ हमें, और हम कोई एक काम नहीं कर रहे, क्योंकि कभी कभार मुझे लोग कहते हैं कि यार लाला आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। मैं उनको कहता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं चीज़ों की, वहाँ जाके देखो तो सही कि वहाँ है क्या। तो आई मीन कि उन बच्चों को स्कूल्स तक लेके आना, उनकी जिंदगियों से जहालत को निकाल के रोशनी को लेके आना, ये मेरा मकसद है उन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का, कि एटलीस्ट स्कूल तो आए। आपका 2.5 करोड़ मैं कह रहा हूँ बच्चा बाहर है, तो अभी हमने जिस तरह बच्चों को स्कूल लाने के लिए लासा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की जैसे मैंने बात की, 2 स्कूल के अंदर हमारे आईटी का काम भी शुरू हो गया। मतलब वाइट स्कूल हो गए जो 5वीं-6वीं क्लास से आईटी की क्लासेस दे रहे हैं वहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे बहुत सारे प्लान है, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। जो आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो फिर मेरा मतलब जो बड़े हैं उन्हीं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो सो कॉल्ड बड़े कम्युनिकेशन डायलॉग्स, एक दूसरे मुल्कों के साथ कैसी कम्युनिकेशन है आपके प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, और जो भी हमें स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने कहा था 90% से प्लस आते हैं, या जो बच्चे और हम जो उनको स्कॉलर, हमने लास्ट ईयर 40 बच्चों को स्कॉलरशिप दी अल्हम्दुलिल्लाह, हाई लेवल पे होते हाई लेवल। पहली बात तो ये कि आपने बहुत फिट रखा हुआ है। मेरी आपकी मुलाकात 98 में हुई थी कराची के अंदर, हम लोगों ने साथ चाय पी थी, उस सब मेरी गाड़ी नहीं थी। शुक्र है ये निगाह कि अपने साथ ये अपने आप को उसका नंबर समझ रहे हैं। तो दूसरी बात है, मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, पाक हाउस इंजीनियर एसोसिएशन के नाम से। मैं सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करूँगा। आपने एक बात की है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की। आप यकीन माने कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस कंट्री को मास्टर्स, पीएचडीज और वो नहीं चाहिए। यहाँ पे मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल लोगों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा माइनिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इतनी शदीद ज़रूरत है यहाँ पे। इससे मैं बता रहा हूँ कि क्वींसलैंड के अंदर मक्का के अंदर 4,500-5,000 हज़ार जॉबें जो है वेट कर रही हैं। अगर ये सिलसिला आप शुरू करते हैं टेक्निकल एजुकेशन का आफ्टर HSC और आफ्टर मैट्रिक, तो वो अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच जो पाकिस्तान में बच्चों को जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते उसको स्कॉलरशिप देते हैं हर साल। लेकिन ये जो काम है ना टेक्निकल एजुकेशन का, ये बेइंतहा ज़रूरी है और इसको प्लीज़ आगे परसू कीजिए। और हमारा फोरम जो है और एसोसिएशन जो भी आपकी हेल्प कर सकती है टेक्निकली, वी आर देयर फॉर यू। हमें आप जैसे लोग चाहिए उनके साथ काम किया जा सके। जो हम अभी तक मशवरे लेते रहते हैं, हम किसी को वो नहीं करते ये आपसे अच्छा वो मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा होगी इसके बाद। अभी भी मेरे ख्याल में जो गल्फ के अंदर जो 2030 तक मेरे ख्याल में 10 लाख बंदा चाहिए उन्हें काम करने, इसी तरह ही है तकरीबन 10 लाख बंदा चाहिए उनको। तो ये जो टेक्निकल वाली बात की, स्किल्स डेवलपमेंट की बात की आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँ दोबारा। गुड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौफीक है और मैं कहते सुनते 89.3 FM रेडियो का करस्पॉन्डेंट हूँ और यहाँ पे थिएटर प्रोफेशनल हूँ। मेरा ताल्लुक मुंबई से है और मेरे दोस्त कमल खजूरिया यहाँ पे हैं जो दिल्ली से हैं। तो पहली बात तो हम हिंदुस्तान की तरफ से आपको ये कहेंगे तहे दिल से हमारा जो है आप सबको शुक्रिया कि आदिल साहब ने जो है हमें इस मुहिम का हिस्सा बनाया। और
शुरुआत में मैं कोशिश कर रहा था कि इसे मैं लाइव करूं, पर क्योंकि मौजू कुछ इस तरह से छिड़े हुए थे, मैंने सोचा मुनासिब नहीं है कि मेरे ऑडियंसेस ये सारी चीज़ें देखें, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया उसे। पर अब मैं शुरू कर रहा हूँ उसको दोबारा अगर इजाज़त है आपकी। तो मेरा काम 89.3 FM के ज़रिए होता है, जो कहते सुनते हिंदुस्तानी में है, और क्रॉस ओवर स्टोरीज जो इंग्लिश में है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल हिंदुस्तानी में और एक इंग्लिश में आपसे पूछना चाहूँगा। पहली बार शायद साहब, आपने इतने सालों से इतनी मेहनत की है, और आपने जो है, मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आप लोगों ने जो है इसको महदूद नहीं रखा सिर्फ पाकिस्तान तक, आपने जो है इसको बाहर भी रखा। और आदिफ भाई शुक्रिया कि आपने हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक़ होने की वजह से जो है हमसे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश होगी कि मेरे जो हिंदुस्तान के ऑडियंस हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरह से वो आपके फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह की मदद कर सकते हैं। और दूसरा फिर मैं अंग्रेजी में आपसे दोबारा पूछूंगा। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी। क्या नाम है FM? कहते सुनते 89.3 FM। कहते सुनते 89.3 FM। प्लीज लाजमी ये रेडियो स्टेशन सुना करें, बहुत जबरदस्त स्टेशन। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा आपके चैनल के थ्रू के हम अपने अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। हम जहाँ पे भी हों दुनिया में, हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में किसी भी मज़हब में देखें तो प्यार मोहब्बत सबसे पहले उसका दर्स दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आई मीन कि हम किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, हकीकत में हम सब इंसान हैं। मज़हब बाद में आता है, लेकिन एक इंसान होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शुक्रिया। And lastly, just one quick question. This is for Crossover Stories. Mr. Shahid Afridi and Jahangir Khan. I would like to know what sort of progress has Shahid Afridi Foundation has found in Australia. Where did you begin and what are your future plans? वैसे तो हमारी तीन चार चीज़ें बुनियादी पे हम काम करते आ रहे हैं, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, पानी के हवाले से है, फिर दूसरी और भी चीज़ें हैं। जैसे आसिफ जो है यहाँ पे 2017-18 से मतलब 19 से इन्होंने शुरू किए, 5 साल हो गए हमारी फाउंडेशन को यहाँ शुरू की, और हमने इन बुनियादों पे काफ़ी यहाँ पे फंड रेजिंग ऑलरेडी ऑनलाइन पे करते रहे हैं। ये हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छे से ड्यू था, एंड वी आर मतलब वेरी मच इसको बड़ा लुक फॉरवर्ड थे कि हम आए यहाँ पे पर्सनली, क्योंकि अपने खेल के ज़माने में तो हम आते रहे, मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस चैप्टर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इस लिहाज से हम दुनिया में दूसरी जगह पर तो हम जाते रहे, मगर ये कि इस साइड पे आना, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक अच्छी मोटिवेशन होगी। और जिन बुनियादों पे हम काम कर रहे हैं, ये उनको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता है। और ऑब्वियसली जब आप फिजिकली जब वो प्रेजेंट होते हैं, उसका मेयार ही कुछ और हो जाता है। तो आई एम श्योर कि जो हमारा 5-6 दिन का ट्रिप है और डिफरेंट सिटीज़ में है, तो इट विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोनों के आने का शुक्रिया, हम इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती होगी अगर हम सईद आतिफ फ़हीम, इरम आतिफ और सुहेल शाह साहब और पूरी टीम की अगर हम तारीफ़ ना करें, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में, क्योंकि इस वक्त छुट्टियाँ 70-80% लोग गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरह इसको कामयाब करने की कोशिश की, ये भी अपनी मिसाल है हमें। तो मेरे ख्याल में एक क्लैब बनती है इनके। तो दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप माशाल्लाह दोनों लेजेंड्स हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ पीछे फूड रिलीफ और वाटर और हेल्थ है, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी लिखा हो, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह लेजेंड हैं, तो ये एक बहुत है। तीसरा ये है कि जो भी पाकिस्तान से आता है, हम तहे दिल से उसकी आंखें बंद करके सड़कों में बिठाते हैं उसको, उसके बदले में हमें सिवाय जन्नत के कुछ नहीं मिलता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों लेजेंड यहाँ पे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए आप कोई फ्री कैंप लगा लें 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि सब क्रिकेट भी खेलते हैं, स्क्वॉश भी खेलते हैं, और उनमें से आपको इंशाल्लाह ताला कोई जहांगीर खान मिल जाएगा, कोई शाहिद अफरीदी मिल जाएगा। तो ये अगर आप प्लीज सोचें, और आपको एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा लोगों के दिलों में आपके लिए। बहुत अच्छी बात की आपने। मेरा बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ पे कि हमारी, क्योंकि 65% यूथ है, सिर्फ हम अपनी यूथ को, सो कॉल्ड जो हमारे बड़े हैं, उनसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि हम अपनी यूथ को सिर्फ 2 चीज़ें दे दें, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। सही, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। उन बच्चों पे एहसान होगा बड़ों की तरफ से, अल्लाह करे ये हो जाए। क्रिकेट एकेडमी बहुत पहले का प्लान है,
अब क्रिकेट एकेडमी के लिए जगह आपको बड़ी चाहिए होती है। गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिली क्रिकेट ग्राउंड की। आई मीन के अगर वो ये चाहते हैं कि मैं बार बार उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा रहूं तो ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहांगीर भाई के साथ अभी फ्लाइट पे बात हो रही थी कि हम अपनी क्रिकेट एकेडमी गवर्नमेंट जगह दे या ना दे, मैं और आप इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके क्रिकेट एकेडमी जिसके अंदर स्क्वॉश वगैरह सारी फैसिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह, और ख़ासतौर पे उन एरियाज़ में कि जहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वहाँ का टैलेंट शहरों में आता है। तो बनिस्बत ये कि वो हम इतना दूर ट्रैवल करें, वाई नॉट के हम उनको वहीं क्रिकेट एकेडमी की फैसिलिटीज़ या स्क्वॉश की फैसिलिटीज़ वहीं इंशाल्लाह हमारा प्लान है। बिल्कुल सर, मेरा छोटा सा सवाल था कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो उनका ड्रीम होगा आपके साथ खेलना या आपके साथ खेलना। अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि हम कोई छोटा सा टूर्नामेंट कर लें, छोटी सी ऐसी चीज़ कर लें एक दिन की, तो आप यकीन करें इससे इतनी ज़बरदस्त आपकी मार्केटिंग जनरेशन होगी। मेरे इसी टूर पे मैं आतिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आतिफ अरेंज करेंगे। बहुत कमाल हो जाएगा। हो गया, डन हो गया। जी, एक मैं शेयर कर देता हूँ एक चीज़। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव एन अरेंजमेंट, और इंशाल्लाह 2 जनवरी को क्रिकेट सेंट्रल जो यहाँ पे दिल्ली में है वहाँ पे एक क्रिकेट ब्लास्ट या क्रिकेट क्या कहते हैं क्लिनिक हो रहा है, उसमें लाला बिल भी दिए। तो इंशाल्लाह दिस इज प्रॉब्ली स्टार्ट, जस्ट 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की एक्टिविटी है, लेकिन दिस इज प्रॉब्ली स्टार्ट, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम और भी इसको बढ़ा माशाल्लाह। और भाई मैं सारी बात को डिस्कस कर लूँ। एक क्योंकि आपने जो भी बात की है, मैं थोड़ा सा सिर्फ पहले क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अखबार में पढ़ा था जो आपने एकेडमी की बात की है कि बनाना चाहते हैं और ज़मीन की ज़रूरत है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध की गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया था कि हम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को ये शाहिद अफरीदी साहब को ये जगह दे रहे हैं। MQM ने भी ऐलान किया था, तो वो सारे कहाँ गए ऐलान? उसके बारे में कुछ बताएंगे ऐलान बड़े होते हैं। तो मतलब ये है कि वो सफाया समझ गए लगवाना और लगवाना का मतलब वही होता है। उन्होंने मुझे बुलाया भी, तस्वीरी सेशन भी किया उन्होंने, बस मैं देखते ही रह बस उसका ऐलान आते मेरा नाम 2009 या 2010 में आपकी शाहिद अफरीदी कैंप्स लगा करते थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। DASK BZ स्कूल में आई वाज अ पार्ट ऑफ इट इन कराची, और आप वहाँ पे आते भी थे, और मुझे उनके देखिए जो क्रिकेट की बात हो रही है उसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कैंप हमारी फाउंडेशन ने लगाए हैं, हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी कैंप्स लगे हैं। हमने USAID के साथ मिल के लाहौर के अंदर और खासतौर पे बच्चियों के अंदर हमने काफ़ी सारे कैंप्स किए हैं। आप थोड़ा सा अगर वेबसाइट सर्च करेंगे उसके अंदर आपको पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। तो जहाँ मौका मिलता है हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। नाज़मीन जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं आज जो है वो संगत ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान चैम्बर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज जो आतिफ ने ये अरेंजमेंट किया है, माशाल्लाह इस माहौल को जो बनाया है, तो इन सब के लिए जो ना मैं सबको कहूँगा कि आतिफ के लिए तालियां हमारी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ताल्लुक KPK से है, तो KPK के हवाले से आपने पहले भी एक दफ़ा कहा था एजुकेशन के हवाले से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे कोई ऐसी एग्जांपल या कोई ऐसा कोट करें कि कोई ऐसी आपने जो वहाँ पे काम किया और लोग अभी भी जो है ना वहाँ पे उसको जो है मिस कर रहे हो, और वहाँ पे होना चाहिए जिसकी आपको वहाँ पे तलाश हो कि आपने वहाँ किस तरह काम करना है। माशाल्लाह देखिए वहाँ पे क्योंकि एजुकेशन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारा, ज़्यादा 3-4 साल हुए हमें। हेल्थ के हवाले से कहेंगे तो हेल्थ की अगर मैं आपको अपने हॉस्पिटल हमने शुरू किया है, काश मैं दिखा सकता आपको कि जिन माओं की दुआएं और जिन बुजुर्गों की दुआएं अभी तक हम ये सिस्टम चल रहा है, हमारी फाउंडेशन का दुआओं भी चलता है, ज़ाहिर बात है लोगों की आप खिदमत करते हैं। तो हॉस्पिटल ने जो लोग 3 घंटे की ड्राइव के लिए जाते थे या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ना होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज उस गांव के अंदर आपने सुना होगा कि लोग गांव से शहर जाते हैं इलाज कराने, उस हॉस्पिटल की वजह से लोग शहर से गांव आते हैं इलाज कराने। अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ की कामयाबी है। और क्योंकि अच्छा थोड़ा सा हमने चेंज किया, क्योंकि हर बंदा 3 घंटे की ड्राइव करके हॉस्पिटल नहीं आ सकता।
हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स निकाले हैं जो मदर एंड चाइल्ड, क्योंकि एक माँ की डिलीवरी 9 महीने माँ बच्चे को पालती है, उसको अच्छे माहौल साफ सुथरे माहौल में ही आना चाहिए दुनिया में। तो हमने हेल्थ यूनिट निकाले हैं। अभी तक हमारे माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 यूनिट्स चल रहे हैं, पंजाब के अंदर, KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, जो कि इस नेटवर्क को मैंने बढ़ाना है। क्योंकि इससे अभी हमने आई कैम्प किए थे, एक बार मिसाल बता रहा हूँ मैं, अभी हमने आई कैम्प किया था, हमने तकरीबन 3 दिन के अंदर 500 पेशेंट का इलाज किया, 500 ऑपरेशंस हुए। अब आप यकीन करें कि आंखों का जो ऑपरेशन है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपए है, 25 से 30 हज़ार रुपए है। आप यकीन करें कि जिन माओं का हमने इलाज किया है उन माओं की दुआएं अभी भी मुझे याद है, मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था उन्होंने कहा बेटा आपको पता नहीं, मैं 15 साल बाद दोबारा अपनी औलाद को देख रही हूँ, 15 साल बाद अपनी औलाद को देख रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जिंदगियों में फर्क आ रहा है और इंशाल्लाह फर्क आना भी चाहिए और इसी के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोग भी हमारे साथ रहें, आप सब लोगों से हमें बहुत सारे अच्छे मशवरे मिल सकते हैं जैसे उन भाई का था। तो मेरे ख्याल में ये वो सारी चीज़ें जो हमें आप लोगों से चाहिए। ये सैफ की टीम में से एक मेंबर है, उनका क्वेश्चन है। 2 मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम लाला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी कि आप लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए इतनी दूर सैफ की कॉज को सपोर्ट करने के लिए। लाला मैं हमेशा यहाँ पे भी यही कहती हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं और आप उन नेमतों को दूसरे लोगों में बांटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये तौफीक अल्लाह हर किसी को नहीं देता। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ऐसे हम ओवरसीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे रह के हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कितनी कंट्रीज में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन काम कर रही है? आप ऑलरेडी रोल अदा कर रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं और ख़ास तौर पे कहाँ पे अमेरिका रजिस्टर्ड हमारी, कनाडा है, सॉरी कनाडा नहीं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है, बहरीन है। तो ये वो लोग हैं जहाँ पे सारे मेरे दोस्त वगैरह ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा कि फिर भी आप लोगों को बता देता क्योंकि NGOs के हवाले से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से जब से फाउंडेशन हमारी है, हमारी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 11 से 12% है, जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी NGO की नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी या सजेशन देना आप तो चाहूँगी। कल से एयरपोर्ट से सवाल किए जा रहे हैं, बस करते हैं। कल से सवाल मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपको सजेशन की भी ज़रूरत है, जी, please। तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन हमारे जो दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं और लेकिन हम एजुकेशन के हवाले से अगर कुछ सपोर्ट करना चाहें एज ए वॉलंटियर, कोई ऑनलाइन पोर्टल या इस तरीके की चीज़ अगर आप लोग ऑलरेडी एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाइब्रेरी और उसमें IT लैब वगैरह माशाल्लाह से आप ही लोगों ने बनाई है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज पानी में आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जो कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो जहाँ जहाँ हमने प्रोजेक्ट्स किए, बलूचिस्तान के अंदर कोई 17-18 प्रोजेक्ट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की। थैंक यू। ऑनलाइन सेशन भी अभी कंडक्ट किया सर। हाँ, ऑनलाइन वेरी गुड। शायद साहब आपका कोई प्रोजेक्ट थर वगैरह में भी है सिंध के अंदर? थर के अंदर हमने पानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। हमने एंग्रोव के साथ 250 बेड का हॉस्पिटल बनाया था। उसके बाद क्योंकि मैंने देखा कि हर कोई सिंध में जाके काम करने के लिए तैयार है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक्सेस बहुत इजी है, बहुत सारी NGO सिंध में काम करती है। हमने शुरू में बहुत काम किया है, तकरीबन कोई 100 विलेजेस के अंदर पानी दिया है, हैंड पंप्स वगैरह, फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह, लेकिन मैं उन एरियाज में जाना चाह रहा हूँ जहाँ कोई जाता नहीं है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको अभी नहीं मिला वो भी we can have another round. शफक की फौरन बात, ठीक है? एक देखिए ना फीमेल Last two please. एक फीमेल है। Okay. Congratulations once again on Hope Knockout. I just want to ask, sir, like Hope Knockout, like it's amazing. It's just amazing. The name itself, you are doing such a
wonderful show. All the blessings to you and all your foundation. How come you come up with this name, Home Now? I think I already mentioned that because this is my second inning और इसमें मैं नॉट आउट रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो था शुरू में मेरी टीम से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार इसकी मुझे टैगलाइन कोई ऐसी चाहिए जो क्रिकेट से रिलेटेड हो क्योंकि मेरी फील्ड है। तो 2-3 आइडियाज शेयर हुए तो मुझे क्लिक पहली दफा में यही हुआ है कि होप नॉट आउट। I think that it's straight from the heart. Sure. It's beautiful. Thank you so much. Thank you. Last. जर्नलिस्टों में सिर्फ एक फीमेल थी तो इसलिए मेरे इतने सारे तो मैं तो दो करने चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो भी सब पे भारी हैं। तो जहाँ भारीपन की बात करिए ना आपने तो फिर मुझे बताइए सर क्यों ना हम सिर्फ बात कर रहे हैं अच्छे क्रिकेटर बने, अच्छे स्क्वैश के प्लेयर बने, अच्छे कम्युनिटी वर्कर भी कैसे बनेंगे। मैं पढ़ाती हूँ इंटरनेशनल कॉलेज में कम्युनिटी सर्विसेज और अर्ली चाइल्डहुड। सो मुझे अब लगता ये है कि पाकिस्तान की बका इसी में है कि आप जैसे कम्युनिटी वर्कर्स भी हैं जिनको पता हो सोशल वर्क करते कैसे हैं, उसका तरीका क्या होता है, क्योंकि अब बहुत सारा जो काम हुआ है पिछले दिनों तो फिर भरोसा नहीं है हमारा ना। हम लोग इतने ज़्यादा बेचारे ना ऐसे हो गए शेकी से। मोहम्मद अली शेकी नहीं, मैं शेकी कह रही हूँ, हमारा विजन शेकी हो गया है। उसकी वजह ये है कि हमें यकीन नहीं होता कि हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें कम्युनिटी वर्कर्स भी अच्छे चाहिए, वो भी बनाइए आप, वो मशीन भी बनाइए। जैसे यहाँ अच्छे आपने आतिफ भाई, ये बैठे सुहेल भाई, इन लोगों को आपने बना दिया अपना सपोर्टर, हम सब तैयार हैं आपके साथ। लेकिन कम्युनिटी वर्कर्स और निकालिए, जैसे कि इंसाफ साहब ने कहा वंडरफुल आइडिया कि हमें हुनर सिखाना है अपने कौम को। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इदारे हैं, कॉलेजेस हैं जिनसे मैं भी वाबस्ता हूँ। आप उनके साथ मीटिंग करके जाएं इस दफ़ा कि वहाँ से बच्चे, हम लोग यहाँ पे गोद लेने को तैयार हैं उन बच्चों को जिनको लेकर आएंगे। जैन शरीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत वहाँ पे हॉस्पिटल कॉलेज बनाए हैं और वहाँ पे वो बच्चों को यहाँ पे आला तालीम के लिए लेकर भी आते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आइडिया हो जाए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन बच्चों को यहाँ लेकर आने के, यहाँ पे हम कॉलेज से आपको मिलवा देंगे जो कि हुनर सिखाएंगे बच्चों को, और फिर कम्युनिटी वर्कर भी पैदा करेंगे, कम्युनिटी सर्विस भी करवाइए कोर्सेज। तो हम आपके साथ तैयार हैं सर, एक इनिशिएटिव इसी साल लेके जाएं। थैंक यू सो मच। आप तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। आतिफ आपके साथ सारी चीजें शेयर कर लेते हैं, आप यहाँ की चीजें हमारे साथ शेयर कर लें, इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, नो इशू। अच्छा लाला, वी आर डूइंग मिनी MBAs as well in our schools. We should have mentioned that thing. Zafar साहब, if you can elaborate on that. जी, हमारे स्कूल्स में हम लम्स के साथ मिनी MBA प्रोग्राम हमने शुरू किया है। अच्छा। जहाँ पे न सिर्फ हमारे स्कूल में जो टीचर्स काम पढ़ाती हैं वो भी उन अंडर प्रिविलेज एरिया से आती हैं, और इसके अलावा उन बच्चों के अंडर प्रिविलेज जो एरिया से बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को हम बुला के मिनी MBA प्रोग्राम कराते हैं टू टीच देम एंटरप्रेन्योरशिप, टू हाउ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस एंड स्टफ। सो एक इनिशिएटिव हमारा ये भी है। शफक, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, बट गोइंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन कंटिन्यूइंग ऑन टू द सेकंड वन, आपने कहा कि हाउ कैन वी बिकम गुड कम्युनिटी वर्कर्स एंड व्हाट कैन वी डू एज अ नेशन एंड ऑल। हम गवर्नमेंट को तो बैठ के सब लोग बहुत इजीली ब्लेम कर सकते हैं, बट व्हाट वी डू आवरसेल्व्स इज दिस इज व्हाट मैटर्स। तो जैसे लाला ने आपसे कहा, जहांगीर भाई ने कहा कि हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। we are trying, maybe we are trying to make a difference, and you guys are also making a difference. आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप आके मशवरे दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं, so you guys are playing a part. तो मेरा ये एक वो है कि if we believe कि हमने अपने आप को बदलना है, पाकिस्तान को हमने ऊपर लेके जाना है, उसके लिए सबसे पहले हम अपने किरदार पे गौर करें, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। व्हाट एवरीबॉडी, मेरी कैपेसिटी है कि मैं वहाँ पे अपने जो कॉज है उसको एम्पलीफाई करूँ, लोगों को एक मैं पाथ दूँ कि यहाँ पे आके आप काम कर सकते हैं। I think as a nation we are very generous nation. हम बहुत चैरिटी का काम करते हैं, सदका, खैरात, ज़कात। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत जेनरस है, ओवरसीज पाकिस्तानी एज अ होल। हम पूरी दुनिया में जाते हैं, डोनेशंस मांगते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू पीपल, जब भी जाते हैं हमें कभी लोगों ने इनकार नहीं किया। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत से कोई दीनी मदारस आ जाते हैं, कुछ और कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी खुले दिल वाली है कि जो भी है उसको पैसे देते हैं। आई थिंक वी आर स्प्रेडिंग आवरसेल्व्स टू थिनली। वी शुड एक्चुअली पिक कॉजेज एंड चैरिटीज एंड सपोर्ट देम। अगर अब आप एरियाज को पिक कर लें, जैसे लाला ने बलोचिस्तान की बात की, साउथ बलोचिस्तान कोई नहीं जाता बिकॉज इट्स इनएक्सेसिबल,
It's 11 hours drive. There are no hotels there. There is no rent-a-car. There is no water. There is no shelter. So you know, if being a CEO of an organization, I have to look at my staff. कि मेरा staff कहाँ जाके ठहरेगा? मेरा staff थर में उमरकोट में रेस्ट हाउस में मिलेगा, कमरा भी लोगों का घर भी मिलेगा, वहाँ ठहर जाएगा. मैं उसको अगर भेजूंगा बदीन में, वो कहाँ जाके दुर्बत में वो कहाँ ठहरेगा? I will not send him, क्योंकि मैंने अपने डोनर को दिखाना है कि मैंने आपके पैसे अच्छी जगह खर्च किए. So we have chosen the difficult part of actually going to Balochistan. We need support ताकि हमें एक कम्युनिटी, हमारा एक एरिया जैसे तुर्बत में, अगर आप हमें एक तुर्बत को यहाँ पे कम्युनिटी, सिडनी की कम्युनिटी अडॉप्ट कर लेती है तुर्बत, वहाँ पे there are 130 schools that were destroyed in the flash flooding. They have never been reconstructed. 130, that's in one district. ठीक है? Every school had about 200 to 300 children. They don't have any school now. वहाँ पे जो clinics थे, मोबाइल छोटे छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट थे, वो तबाह हो गए. Nobody was able to rebuild them. Government doesn't have the resources. NGOs are having difficulty reaching out to them. तो उन जगहों पे अब हमने काम शुरू किया है. We need to amplify our voice. आप लोगों की हमें support चाहिए. If you can amplify our voice, we have the capacity, we have the footprint on the ground. आप हमें support करें, हम वहाँ पे काम करते हैं. तो this is something that you can actually work very actively on. आपने बात की vocational training के and all this. तो हमने ये चीज़ सोचा था कि बच्चा मैट्रिक के बाद जो year 10 एजुकेशन के बाद, because not everybody goes to engineering or a law school or a medical college, and what else they do? They end up at the bottom of the food chain again, because that's year 10 education does not get them anywhere. So हमने उसको शुरू किया, and it's also not हमारे को brain wave नहीं थी. स्कैंडिनेविया को आप देख लें, every child in the school has to have an aptitude. First, not an attitude, aptitude. वो हर बच्चे को स्किल सिखाते हैं. By the time the child graduates after the school, उसके बाद skill होता है. Masonry, carpentry, plumbing is taught to every Scandinavian pupil in the school. उसके बाद वो engineering पढ़े, space science पढ़े, it's another thing. तो वो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आगे जाके वो किसी स्किल फोर्स का हिस्सा बनेंगे. तो we have started it. हम अपने 15 स्कूल हैं हमारे. We are trying to expand. We have started. हमने एक स्कूल से शुरू किया. अल्हम्दुलिल्लाह we went on to the second school. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जो ड्रॉप आउट स्कूल थे बच्चे थे, उसको रोकने के लिए हमने कहा कि जो राशन आप लोग दे देते हैं, कि नो आपने बेगिंग बोल, एवरी ईयर हम लोगों को राशन जाके बांटते हैं. वो राशन एक महीना खाने के बाद नेक्स्ट मानसून के बाद फिर दोबारा नहीं होता. तो व्हाई नॉट एक्चुअली यूज इट. तो हमने शुरू किया कि बच्चे को एक महीने का आटा देंगे ताकि उसके पेरेंट बच्चे को स्कूल से ना निकालें और वो बच्चा स्कूल आता रहे. So at least they can break the vicious cycle of poverty. So these are the few initiatives. I can talk for hours. अभी आपसे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे. So these are the few initiatives we are taking. But हमें आपकी support चाहिए. Just amplify our voice. We need our message and our efforts to be actually broadcasted to wider community so that they can actually target their resources. Thank you.